अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज जिशान बशीर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4 फ्रॉम बुक 5. Match the words to form collocations in your notebook. Use the word pairs to make sentences. Dear students, यहाँ पे हमने words को पूरा करना है और collocations बनानी है, यानी कि एक लफ्ज़ जिसका ताल्लुक दूसरे के साथ हो उसको आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, kind words, express gratitude, charitable offer, strong coffee, fast food. Now turn to page 38. Types of pronouns. Pronouns are words used in place of noun. Pronouns उन अल्फाज को कहा जाता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं. Personal pronouns stand for the names of people, animals and things. जो personal pronouns होते हैं वो इंसानों के, जानवरों की या चीज़ों के नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं. For example, Adam went to the market. He bought a new geometry set. He in place of Adam. Personal pronouns can be subject और object. ये subject भी हो सकते हैं और object भी हो सकते हैं. फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, वी. इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स क्या होंगे? मी एंड अस. सेकंड पर्सन में यू, यू. इसके जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसमें भी यू एंड यू. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या दे. इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होंगे वो हिम, हर, इट या देम होंगे. पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस, डियर स्टूडेंट्स, जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो मलकियत को जाहिर करते हैं. Possessive pronouns are used to show that something belongs to someone. यानी कि ये बताते हैं कि इस चीज़ का ताल्लुक किसी शख्स के साथ है, यानी कि मलकियत को जाहिर करते हैं, जैसे कि mine, ours, yours, his, hers, theirs. For example, this book is yours and that one is mine. Demonstrative pronouns point to the objects to which they refer. जो demonstrative pronoun होते हैं वो point out करते हैं, यानी कि इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ या शख्स की तरफ. जैसे कि these, those, this, that, this is my goat, that is my house. Interrogative pronouns are used to ask questions. ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. The answer to the question should be a noun, जिसका जवाब एक नाउन के अंदर हो. जैसे कि who, what, which, whom and whose. Which is your favorite season? Who got the medicines? Reflexive pronouns are used when the subject and the object of the sentence are the same person or thing. जब subject ही object हो तो उसको जाहिर करने के लिए reflexive pronoun लगाया जाता है, यानी कि reflexive pronoun is the reflection of the subject itself. जैसे कि myself, yourself, himself. The musher prepared himself for the journey. यहाँ पे for the journey. The musher prepared himself for the journey. यहाँ पे musher जो है वो subject है और इसी को एज ऑब्जेक्ट जाहिर करना है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो है हिमसेल्फ. हिमसेल्फ से मुराद कौन है? द मुशर. द डॉग क्लीन्ड इटसेल्फ आफ्टर ईटिंग. इटसेल्फ कौन है? द डॉग. नाउ टर्न टू पेज 39. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट पोजेसिव प्रोनाउंस. Barto's determination saved the town. The determination was his. The sled dog's efforts were crucial. The efforts were theirs. The mushers' leadership guided the team. The leadership was his. The mushers volunteered their services. The idea of fetching the antitoxin was theirs. Fill in the blanks with the correct demonstrative pronouns. That was an incredibly tough journey. Those dogs over there were part of the team. This is the same map they used to navigate. These medicines in my hand are the ones we needed. Read each statement below and frame a question using the appropriate interrogative pronouns. ये students, ये statements दी गई हैं, इनको हमने questions में change करना है. The team leader guided the dogs through the blizzard. Who did guide the dogs through the blizzard? Question mark. The path behind the mountain was considered the safest path. Which path of the mountain was considered the safest path? Question mark. You borrowed the musher's map. Who borrowed the musher's map? Question mark. The musher's jacket was left at the campsite. Where was the musher's jacket? And question mark. Complete the sentences with the most appropriate reflexive pronouns. The mushers prepared the sled himself. I reminded myself to stay focused. The dog licked itself after the injury. We must get the medicine ourselves. Now turn to page
40. Spell well below are some misspelled words. Write the correct spelling next to each word. ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इनके स्पेलिंग को ठीक करेंगे. DIPHTHERIA डिप्थीरिया. Frozen FROZEN. Mushers MUSHERS. Wilderness WILDERNESS. Siberian SIBERIAN. Darkness DARKNESS. Perseverance PERSEVERANCE. Statue STATUE. Antitoxin ANTITOXIN. Surge SURGE. Blizzards BLIZZARDS. Gratitude GRATITUDE. Speak well, sit in pairs. Look at the map and choose a place where you and your partner are standing. Dear students, pairs बना लें और देखें आप और आपका साथी नक्शे के हिसाब से कहाँ पे खड़े हैं. Now ask your partner to decide where he wants to go. अब आप अपने साथी से पूछेंगे वो कहाँ जाना चाहता है. Give step by step instructions to reach the place. फिर उसको बताएं कि कैसे कैसे जाना है, यानी कि आपने नक्शे के मुताबिक उसको समझाना है कि कैसे कैसे जाए. जैसे कि स्टार्ट एट दी एंड गो, टर्न लेफ्ट एट दी, गो स्ट्रेट अलॉन्ग विद ETC. इट इज़ योर स्कूल बेस्ड एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे आपने पेयर्स में काम करना है और अपने साथी से पूछना है कि वो इस वक्त कहाँ है और उसके हिसाब से आपने उसको नक्शा गाइड करना है कि वो कैसे कैसे करके आप तक पहुँचे. You can take guideline of your teacher as well. Now turn to page 41. Write well. A notice is a written or printed announcement that is used to inform a group of people about an event or provide information. जो notice होता है वो एक लिखी गई announcement होती है जो कि लोगों को inform करने के लिए लिखी जाती है और या उनको मालूमात देने के लिए लिखी जाती है. Notices are displayed in public places or distributed to ensure that people get इन्फॉर्मेशन. और जो नोटिस हैं वो पब्लिक मुकामात पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्म्ड रखा जा सके. अ नोटिस मस्ट गिव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. एक नोटिस के अंदर तमाम ज़रूरी इतलात होती हैं. फॉर एग्जांपल द टाइम, वेन्यू, डेट, लास्ट डेट टू रजिस्टर एंड हु टू कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. यानी कि ये सारी चीज़ें नोटिस के अंदर मेंशन की जाती हैं. मेंशन द पर्पस ऑफ नोटिस क्लियरली, और उसका मकसद भी वाज़ेह तौर पे लिखा जाता है. यूज़ impersonal language, write in the third person and avoid using I and you. इसके अंदर I और you का इस्तेमाल नहीं किया जाता, थर्ड पर्सन में इसको लिखा जाता है. Be placed in a box, और एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है. Be concise, इसमें जो अल्फाज लिखे जाते हैं वो 60 से 80 होते हैं, यानी कि टू द पॉइंट लिखा जाता है. मॉडल आंसर, यहाँ पे आपको एक मॉडल नज़र आ रहा होगा जिसमें एक नोटिस जारी किया गया है ब्राइट माइंड्स स्कूल की तरफ से, और डेट, टाइम, वेन्यू, एनुअल साइंस फेयर, उसका मकसद, हर चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे यहाँ पे मेंशन की गई है और बिल्कुल टू द पॉइंट है. यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल. आप अपने स्कूल के हेड बॉय. इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट एन अपकमिंग बेक एंड सेल इवेंट टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल शेल्टर. आपने अपनी कॉपी पे एक नोटिस लिखना है जिसमें आपने एक अपकमिंग इवेंट जो आने वाला है उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, जिसमें बेक एंड सेल इवेंट है. आपने फंड्स को रेज करना है एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इवेंट. उसकी डेट, टाइम एंड लोकेशन भी बतानी है. एंड हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट. थोड़ी सी डिटेल्स भी बतानी है कि आप उसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं. यू कैन टेक गाइडलाइन ऑफ योर टीचर एज वेल. दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज. जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सारे कंपोनेंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे. जहां आपको कोई मुश्किल पेश आए आप अपने टीचर की रहनुमाई ले सकते हैं. मिलते हैं नए यूनिट के साथ अगली वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.